नमस्कार, हैप्पी संडे। डॉक्टर साहनी, ईएनटी सर्जन एंड लाइफ कोच। आप लोग कहाँ कहाँ से हैं? मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है? अगर मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है तो राइट सी द चैट बॉक्स। थैंक यू। यस, कम ऑन प्लीज। कहाँ कहाँ से हैं आप लोग? सी भी लिखिए और कहाँ से आप आए हैं, ज्वाइन किया है, बताएं। वेलकम टू दिस वेब। दिस इज नॉट ए वेबिनार, बेसिकली सम पार्ट ऑफ वेबिनार एंड सम पार्ट ऑफ मेडिटेशन। दिस इज ए वेरी गुड वेबिनार। नो योर सेल्फ, अपने आप को जाने। आज हम सब लोग अपने आप को जानने की कोशिश करें। तो आप बाबा लोग, मेरी वॉइस क्लियर आ खातो रही का है? मेरी वॉइस हा क्लियर, भूक लागेल तर घेऊन घ्या भाजी आहे पोळी आहे भात आहे हा वॉइस क्लियर आ रही है? काय? दीपक जी, रंजन जी, गणेश जी। यस, कम ऑन। मेरी वॉइस क्लियर है? राइट सी इन द चैट बॉक्स। यस सर, क्लियर है सर। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। आप लोग कहाँ कहाँ से हैं? यस, ठीक है। उदयपुर, दीपक जी। अमृतसर, ठीक है, ओके। पर अभी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तो जब तक एक मेरा अपनी आइडेंटिटी है, एक इंट्रोडक्शन है, वो मैं आपके सामने 2-3 मिनट का लगाता हूँ, जिससे कि आपको ऑथेंटिसिटी नजर आएगी। क्योंकि कोई भी चीज को जानने के लिए ऑथेंटिक पर्सन का होना बहुत जरूरी है। मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन तो यही है कि मैं ईएनटी सर्जन हूँ। मैं डायरेक्टर हूँ अपने हॉस्पिटल ओम साई ईएनटी हॉस्पिटल का। और मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, मेरा बेटा भी डॉक्टर है। और हम लोग सब, वो हमारी फैमिली टीम है, अपनी टीम के साथ अपने ईएनटी हॉस्पिटल ग्वालियर में चलाते हैं। वो 22 कंट्रीज और 10,000 ऑपरेशन ईएनटी के मैं अभी तक कर चुका हूँ। और बाकी एक इंट्रोडक्शन मैंने बनाया है, वो आप लोग सुनिए जब तक और लोग जुड़ते हैं। ओके। Dr. S.P. Sahani, the director of Om Sahi ENT Hospital, Gwalior, is one of the leading and familiar ENT experts in the region of the Gwalior, India. He has been providing top quality medical treatments with the compassion and commitment to his patients. He specializes in all aspects of ENT treatments, ear surgeries, and other surgeries, mainly in allergy, audiology, nasal, and sinus disorders. After completing his MBBS in 1986, Dr. SP did post graduation in ENT in 1989. He has been successfully leading several ENT surgeries since 2002. He qualified for the PSC examination and joined SIHNC Gwalior as a research officer and training coordinator. He coordinated several national training programs where he trained TOT trainees. Dr. S.P. Sahani was honored with the prestigious HWO Fellowship in 1999. Besides this, he also received several awards and recognition from various medical organizations. Besides having a successful medical career, he is an eminent motivational speaker. He conducts several workshops all across the globe, helping people with tips of life management, stress management, anxiety, and personality development. With his expertise and brilliant communication skills, he has motivated many individuals and helped them change their lives entirely. जेवण करून घ्या ना. People from several हं? corners of the world have been benefited from his motivational workshops. Dr. S.P. Sahani is a man of a positive and very humble attitude. To help patients who can't visit him personally, Dr. Sahani जेवढं पचन तेवढंच खात जा. very famous YouTube तसं channel नाही known as Improving Life with Dr. S.P. Sahani. Programs running by Dr. Sahani for ensuring physical health with emotional well-being to mankind are Improving Life with Dr. Sahani, Stress Management, Share and Care. Motivational workshops of Dr. S.P. Sahani have dragged patients out of depression and other severe psychological disorders. His words spread a ray of hope in thousands of lives. By this,
he has been serving his society and humanity as a whole. Our digestion, heart, and immunity are directly influenced by the kind of thoughts our mind gives. Therefore, Dr. S.P. Sahani suggests keeping negativity away from our lives and works rigorously towards this mission. Positivity sessions conducted by Dr. S.P. Sahani are of significant relevance in our work lives as well. Such sessions taken by him in several corporate houses have helped employees and professionals attain much higher levels of work-life balance. Dr. Sahani suggests his patients to follow a daily exercise routine. It not only keeps you physically fit, but also helps to attain mental stability. Have a check over your thoughts and observe them properly. Whenever you experience anything negative, just try to switch your thoughts. This helps in keeping negativity at bay. Dr. S.P. Sahani, ENT surgeon from Gwalior, is ensuring physical health with emotional well-being of mankind. Thank you for patience hearing. दीपक जी या मीना जी माइक खोल खोल देता हूं मैं आपका, और आप बताएं कि ये जो मैंने बताया है अपने बारे में आप लोग क्या जानते हैं। राइट इन द चैट बॉक्स या मुंह से भी बता सकते हैं कि आप कौन हैं, अपने बारे में अपने क्वेश्चंस जो किए हैं, आप कौन हैं, क्या हैं, अपने बारे में आप क्या जानते हैं। कोई बताए, रंजन जी बताएं, मीना जी बताएं, दीपक जी बताएं। माइक माइक खोल दिए हैं, आप माइक पे बोल सकते हैं कि आपने बारे, जैसे मैंने बताया कि मैं डॉक्टर साहनी हूँ, आप लोगों के बारे में क्या आप लोग जानते हैं कि आप कौन हैं। हम कौन है। एक प्रेमी कह रहा है कि आत्मा, आत्मा, आत्मा है तो फिर कैसे काम चलेगा। बोल रहा है। रंजन जी कह रहे हैं इशू है, इशू खत्म हो जाएगा। यस, रंजन जी अगर आप समझ जाएंगे तो आत्मा खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये इसको टू वे बनाने का तरीका यही है। आज मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अपने आप को आप लोग जाने। बेसिकली क्या है कि ये मैंने अपना इंट्रोडक्शन बताया, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो वास्तविकता ये है कि ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरा इंट्रोडक्शन नहीं है। मेरा इंट्रोडक्शन सही मायने में क्या है, जो ब्रह्मांड का है। और पूरा जो ब्रह्मांड है, जैसा कि मैं कई अपने वेबिनार में बता चुका हूं कि वो त्रिगुणी है। साइंस उसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानती है, और गीता उसको सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण कहते हैं। जैसे सतोगुण क्या होता है, जो सात्विक भोजन हम लोग कंद मूल डायरेक्ट अर्थ से लेते हैं, उसी को हम कंद मूल कहते हैं। और जब वो तला भुंजा हो जाता है, जो कि राशि भोजन है, जो आप और मैं सब खाते हैं, वो राजस्वी सोच हो जाती है। वो तामसिक, जैसे शराब वगैरह जो है, तामसिक भोजन में आती है। एक एग्जाम्पल पे समझाया है, पर मेरा कहना यह है कि ब्रह्मांड जो है त्रिगुणी है। हम लोग, साइंस उसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलती है, और शास्त्र ब्रह्मा, विष्णु और महेश बोलते हैं। ये हर बॉडी के पार्ट में मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। कहने का मतलब ये है कि हमारे हर अंग में, हर ब्रह्मांड के अंग में हमारे अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण भी हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी हैं। तो ये चीज आपके समझ में आना चाहिए। जैसे ये हमारी बॉडी है, ये जो बॉडी है जिसमें मैं हाथ हिला रहा हूं, और अभी आप देखिए, अभी अपन एक एक्सरसाइज करते हैं कि मैं जैसे मान लो अभी आंखें खोली हुई हैं, मैं तो आंखें खोल के मेरे को आपके और बीच में एक स्पेस दिख रहा है, दूरी दिख रही है। अब मैंने ये आंखें बंद कर दी, तो मेरे अंदर चित्रण चल रहा कि मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है, लोग हैं, मीना जी भी की शक्ल भी दिख रही है मेरे को, रंजन जी भी दिख रहे हैं,
और एक दाढ़ी वाले स्मार्ट बाबूजी भी, भाई साहब भी दिख रहे हैं। तो ये अंदर जो दिख रहा है वो हमारी एनर्जी है, वो हमारा माइंड है। जो हम बाहर देख रहे हैं वो हमारी फिजिकल एनर्जी है। पर कमाल की बात ये है, ये ना ना बॉडी हम है, ना एनर्जी हम है। पर हम कौन है? मैं आपको उल्टे तरीके से समझाता हूं। जिस चीज के बिना हम जिंदा रह सकते हैं वो हम नहीं है। ये मैंने ट्रैक सूट पहना है, इसको मैं उतार दूं तो मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं? राइट, यस और नो? मैं अगर ये ट्रैक सूट उठा दूं, जिंदा रहूंगा कि नहीं? यस और नो? कम ऑन प्लीज। Yes. मीना जी, यस। अगर मान लो मीना जी चश्मा उतार दे, जिंदा रहेंगी कि नहीं? यस और नो? Yes. यस। अगर कई लोग ऐसे आपने देखे होंगे जिनकी आंखें नहीं होती तो भी वो जिंदा होते हैं कि नहीं? Yes. यस। अगर कई लोगों के बहरे होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो भी जिंदा होते हैं। तो Yes. कई लोग हम ऑपरेशन वगैरह करते हैं और कोमा में भी कई लोग हेड इंजरी की बात चले जाते हैं। मतलब माइंड भी नहीं होता तो वो जिंदा होते हैं कि नहीं? Yes. यस। तो जिन जिन चीजों की वजह से, छोड़ने की वजह से हम जिंदा रह सकते हैं वो हम नहीं है। मतलब आंखें हम नहीं हैं, चश्मा हम नहीं है, बॉडी हम नहीं है, एनर्जी हम नहीं है। पर जब हम किसी की डेथ डिक्लेयर करते हैं तो कोई चीज ऐसी है जो चली जाती है और आदमी को हम मृतक घोषित कर देते हैं। उसी को प्योर कॉन्शियसनेस बोलते हैं। वही समझ लो, सोल बोल लो, आत्मा बोल लो, चाहे भगवान बोल लो, चाहे डिवाइन एनर्जी बोल लो, वही एसेंस है ब्रह्मांड का आपके अंदर, जो आपको जिंदा रखे हुए है। आप जरूर बोलते हो कि आदमी मर गया, पर मरता नहीं है। जैसे बादल है, बादल फटा, बारिश हुई, पेड़ पौधों ने पानी लिया, फिर भाप बन के ऊपर गया। फिर आपकी निगाह में तो जो है बादल मर गया, पर बादल मरा कहाँ? बादल तो दोबारा बादल बन गया। ऐसे ही क्या है कि हम लोग बोलते हैं कि हम मर गए, पर मरता नहीं है आदमी। वो एक नई स्टार्टिंग उसकी हो जाती है। वो प्योर कॉन्शियसनेस मिल जाती है। भाई जो एयर आप ले रहे हैं, जो एयर मैं ले रहा हूं, भाई जैसे मान लो कि मैं मर गया तो यहां से कोई ये ब्रह्मांड थोड़ी खत्म हो जाएगा। बाकी लोगों के लिए तो पूरी दुनिया है ना, काम तो वैसे ही चलते रहते हैं ना। इसका मतलब ब्रह्मांड तो है ही। पर यह है कि जो मेरे अंदर जो एसेंस था पांच तत्वों का, जैसे स्पेस है, एयर है, वाटर है, अर्थ है, फायर है, वो जो है उसमें मिल गया। वो पांच तत्व जो है उसमें मिल गए। तो असली जो मेरा इंट्रोडक्शन है वो यही है कि मैं प्योर कॉन्शियसनेस हूं। हर आदमी परमात्मा का भक्त है, किसी न किसी रूप में भगवान को मान रहा है। पर जब भक्त ये समझ जाता है कि मैं प्योर कॉन्शियसनेस हूं, तो भक्त में से भगवान का जन्म हो जाता है। यही एक इंपॉर्टेंट चीज है। हर भक्त भगवान का भगवत, हर भगवान जैसे राम हो, चाहे कृष्ण हो, इन सब का जन्म भक्तों से ही हुआ है। गुरु नानक जी हो, महावीर हो, आप भी सब भक्त हैं। कई जन्म लग सकते हैं, पर जिस दिन आपको ये समझ में आ गई कि मैं प्योर कॉन्शियसनेस हूं, तो आप ये सब चीजें, काम सब होते हैं, माइंड और बॉडी के लेवल पे सब सारे काम करने हैं जो आपका काम हो रहा है। पर फिर आदमी करता काम सब है, पर हेट्रेड, जेलसी, कंपैरिजन, कंपटीशन, एंगरनेस ये नहीं करता। उसका नजरिया बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसको हर चीज में नयापन नजर आने लग जाता है। वो ये नहीं कहता कि हमारी शादी को 20 साल हो गए। वो ये कहता है उसको, क्योंकि पत्नी तो रात को सोई, सुबह दोबारा ही जन्म हुआ है, हर चीज नई है।
पत्नी भी उसको नई नजर आती है, घर भी उसको नया नजर आता है, कार भी उसको नई नजर आती है। अभी हमको क्या लगता है, घर को रेनोवेट कराएं, पुताई कराएं, नई कार लें। कई लोग नयापन ढूंढने के लिए ड्रग्स भी लेते हैं, शराब भी पीते हैं, मैखानों में भी जाते हैं। पर सोच क्या रहे हैं, वो नई चीज चाहते हैं। पर नयापन भाई, अगर आपने अपने मन को ही नया कर लिया तो आपको हर चीज में नयापन नजर आएगा। फिर इन चीजों की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। कोई डॉक्टर बन जाता है तो प्रेसिडेंट बनने की कोशिश करता है, जो प्रेसिडेंट बन जाता है तो स्टेट से वो सारा इंडियन लेवल के प्रेसिडेंट लेवल बनने की कोशिश करता है, पर नयापन ढूंढने के लिए। पर नयापन भार नहीं है। अगर आप अपने शीशे को ही साफ कर लो, मन को ही साफ कर लो, तो आपको हर चीज में रोज नयापन नजर आए। यही आपका स्या इंट्रोडक्शन है। इसको एक बार रिवाइज करते हैं अपन। जैसे जो बाल्टी है, ये हमारा शरीर है। इसमें जो पानी भरा हुआ है वो एनर्जी है, मॉलिक्यूलर बॉडी है। और जब पानी स्थिर होता है, जब हम पीस में होते हैं, काम में होते हैं, तो हमको प्योर कॉन्शियसनेस के दर्शन होते हैं। तो पीस और कामनेस के लिए हमें क्या करना है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। पर इसको ध्यान रखने के लिए पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि हम कौन सी स्टेज पे खड़े हैं। तो क्या है कि स्पिरिचुअल जर्नी की भी कुछ स्टेजेस वाला स्टेजेस होती है। देखिए, सबसे पहली स्टेज है सातवीं, आखिरी की, अनइंटरेस्टेड। लोग ये चीज सुनना ही नहीं चाहते। एक वो कैटेगरी, वो भी लोग हैं, वो स्पिरिचुअल नॉलेज सुनना ही नहीं चाहते कि हम बुढ़ापे में सो रहे हैं, अभी हम कोई मर थोड़ी रहे हैं। तो एक स्टेज ये होती है। उसके बाद कैजुअल इंटरेस्टेड। ठीक है, डॉक्टर साहब का वेबिनार है, सुन लो, 10 मिनट दिमाग खाएंगे फिर चले जाएंगे। कैजुअल। पांचवी स्टेज वाले होते हैं स्टेज ऑफ बीइंग ए फॉलोअर। वो किसी भी गुरु या किसी भी किताब को पकड़ लेते हैं, उसको फॉलो करते रहते हैं, खुद कुछ नहीं करते। जो किसी ने कह दिया उसी में आरती, पूजा, भजन, अभ्यास, घंटा वगैरह जो करना है, कि यहाँ चले जाना, वहां चले जाना, ये कर देना, वो फॉलोअर बन गए। उसके वे आती है डिवोटी। वो मालूम पड़ा कि एक पत्थर की मूर्ति कोई पकड़ के बैठ गया, किसी ने उसको कह दिया कि यहीं तुम्हारे परमात्मा बसते हैं। एक ऐसी स्टेज वाले होते हैं। और अब आ गए थर्ड स्टेज वाले जो इंपॉर्टेंट है, जैसे आप लोग हैं सीकर्स। मिस्टिज्म। मिस्टिज्म क्या चीज है, जो अपने आप का ज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कौन हूं। इस सोचोगे जब ही तो जानोगे। अगर आप इस स्टेज पे हैं मेरे हिसाब से, जो कि करोड़ों लोगों में से इस वेबिनार को सुनने के लिए आए हैं। उसके बाद द रियल डिसिप्लिन स्टेज। फिर जैसे जो मैंने बताया, जो मैंने समझा, उसकी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं डिसिप्लिन के साथ, कमिटमेंट के साथ, तो आप मान के चलिए कि स्टेज 1 में, फ्रीडम की स्टेज में आप पहुंच जाएंगे। कहने का तात्पर्य है, जैसे नींद में सपना होता है, सब कुछ होता है, आप नहीं होते, ऐसे ही चलते फिरते दुनिया के सारे काम और अच्छे से करेंगे आप, पर आप नहीं होंगे। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ज्यादा अटैच नहीं होंगे आपका, क्योंकि मन साफ है, आपके लिए सब बराबर है। तो ये स्पिरिचुअल सीकर्स की स्टेजेस हैं। एक अनइंटरेस्टेड, एक कैजुअल इंटरेस्टेड, एक फॉलोअर, एक डिवोटी, एक मिस्टिज्म, एक स्टेज ऑफ डिसिप्लिन और स्टेज ऑफ फ्रीडम। तो दोस्तों, ये स्पिरिचुअल सीकर्स हैं। हम लोग प्योर कॉन्शियसनेस हैं। प्योर कॉन्शियसनेस को पहचानने के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिकली शास्त्र भी यही कहते हैं, साइंस भी यही कहती है कि पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है। और हमारी जो आंखें होती हैं, जिसमें आपकी मैं चित्रण कर रहा हूं, वो आप मुझे देख रहे हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, तो हमारी आंख के बीच में एक स्पॉट होता है जिसको हम लोग ब्लैक स्पॉट बोलते हैं। अभी आप देख के कर सकते हैं। आप एक आंख बंद करिए, दोनों एक उंगली ऐसे रखिए सामने, एक आंख की,
और एक आंख बंद कर दीजिए, कर दी। अब ये दूसरी उंगली हम इसके पास लाए। अब ये उंगली धीरे धीरे जा रही है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इसका ऊपर का हिस्सा आपको नहीं दिखेगा। ये ब्लैक स्पॉट है। ये हमारे माइंड में जगह है साइलेंस की, जहां कोई दुनिया का प्रतिबिंब नहीं बनता, जिसको हम ब्लैक स्पॉट बोलते हैं। पूरे इमेज जो भी हम देखते हैं आई में बनती है, पर ब्लैक स्पॉट पे नहीं बनती है। यही ब्लैक स्पॉट आप गूगल में देखिए, ब्लैक स्पॉट होता है, वो हमारा साइलेंस का जगह है। और प्योर कॉन्शियसनेस को जानने के लिए आपको साइलेंस की सख्त जरूरत है। पर साइलेंस में रहना इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए हमको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस के लिए कई टेक्निक्स किताबों में दी हैं, पर मेरी जो व्यक्तिगत सोच है, जो शुरू में प्रेजेंट में रहना चाहते हैं, वर्तमान में रहना चाहते हैं, तो ये शरीर हमारा जो है वर्तमान में चलता है। ये वर्तमान में ये कोई यहीं रहेगा, यहीं पांच तत्वों में लीन हो जाएगा। तो आप आंखें बंद करके ओम, ओम साईं, ओम, 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 उंगलियां भी बढ़ाते जाओ, उंगलियों पे भी ध्यान रहेगा, ओम पे भी ध्यान रहेगा। तो आपके जो दिमाग है वहां स्थिर रहेगा, एंकर रहेगा। पर रेगुलर प्रैक्टिस करने से 10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, धीरे 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 आपका ध्यान लगने लग जाता है। और 5 मिनट से कब वो 1 घंटा हो जाएगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। वो जब आप साइलेंस में होते हैं और मेडिटेशन में होते हैं, तो आपका माइंड मेडिटेटिव बन जाता है। और आप दिन भर जो है पैरासिम्पैथेटिक मोड में रहते हैं। तो आप जो है सब के काम, आपका माइंड पीस और कामनेस में रहता है। पीस और कामनेस ही समाधि का एक रूप है। यही कॉन्शियसनेस को जानने का है। एंजाइटी, किसी ने बोला मुझे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, भैया ये सब जो है बीमारियां हैं। ये शरीर की बीमारियां हैं, वो माइंड की बीमारियां हैं। और माइंड को ठीक करने के लिए यही चीजें आपके काम आएंगी। अभी दवाई आप चलने दीजिए। अगर इतना क्लियर हो तो फिर हम लोग जो है अपने जो मॉलिक्यूलर बॉडी है उसमें कुछ वाइटल एनर्जीज रहती हैं, उनको रिफ्रेश करने के लिए एक मेडिटेशन करेंगे। अगर इतना समझ में आ गया हो तो गिव मी द परमिशन फॉर मेडिटेशन, राइट? पी इन द चैट बॉक्स। थैंक यू मीना जी। पावर पोस्चर में आ जाए, माइंड, आंखें बंद कर लें और मेरे शब्दों को अपने माइंड में, ब्रेन में जाने दें, जाने दें, जाने दें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर SP साहनी। आज मैं ध्यान पर चर्चा करूं। ध्यान बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां आदमी का फोकस यानी कि ध्यान होता है, वहीं उसकी एनर्जी, जिसे लोग राम, कृष्ण, गॉड, अल्लाह के नाम से जानते हैं, वह लग जाती है। लाइफ की सारी परेशानियां, जैसे नेम, फेम, सक्सेस, रिलेशनशिप, क्लटर्ड माइंड, मंकी माइंड, इन इन सब का एक ध्यान या मेडिटेशन से हम दूर कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अपने शरीर में 7 चक्र होते हैं, जो अपनी वाइटल एनर्जीज का सेंटर रहते हैं। इस पे काफी रिसर्चेस देश विदेशों में हो चुकी है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। उदाहरण के तौर पे
फिर समझाता हूं कि जैसे आजकल कोरोना काल चल रहा है तो किसी ट्रेन को अपने स्टार्टिंग पॉइंट से डेस्टिनी तक पहुंचना है और रास्ते में उसको 7 स्टेशनों पर से रुकना है। हर स्टेशन पर यदि उसे सैनिटाइज कर दिया जाए, साफ कर दिया जाए, तो इन्फेक्शन और बीमारी का डर कम हो जाता है। उसी प्रकार जब हम अपने 7 चक्रों की क्लीनिंग करेंगे तो अपने डेस्टिनेशन पर आसानी से खुशी खुशी पहुंच सकते हैं। जो पहला यानी कि बेस चक्र है, जिसे रूट चक्र भी कहा जाता है, वह सिक्योरिटी बढ़ाता है। दूसरा चक्र क्रिएटिविटी और प्लेजर बढ़ाता है। तीसरा चक्र सक्सेस की तरफ, नेम की तरफ, फेम की तरफ अपने आप को बढ़ाता है। चौथा चक्र इमोशनल सेटिस्फैक्शन का चक्र है और पांचवा चक्र गुड कम्युनिकेशन का चक्र है। सिक्स्थ चक्र क्लैरिटी ऑफ माइंड का है और 7 चक्र ब्लिस, कनेक्शन विद यूनिवर्स, कनेक्शन विद गॉड का है। आओ मित्रों, सब मिलकर एक ऐसा मेडिटेशन करें विजुअलाइजेशन टेक्निक से, जिससे कि हमारे सारे चक्रा क्लीन हो जाए और सैनिटाइज हो जाए। विजुअलाइजेशन टेक्निक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का फंक्शन है, जो पहले इमेजिन करता है, फिर उसे विजुअलाइज करता है और फिर एक्शन में लाता है। अब सभी लोग अपनी स्पाइन को एकदम स्ट्रेट रखें, आंखें बंद कर लें, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें। मेरे शब्दों को विजुअलाइज करते हुए अंदर तक जाने दें। अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए सांस को अंदर लें, मीन्स इंस्पायर करें, रोकें, छोड़ें, फिर इंस्पायर करें, रोकें और छोड़ें। एक बार फिर सांस लेंगे, कुछ सेकंड्स के लिए रोकेंगे और फिर छोड़ेंगे। डीप रिलैक्स, पूरी बॉडी को ढीला एवं एकदम रिलैक्स, पूरी स्ट्रेस टेंशन को शरीर से बाहर निकलते हुए महसूस करें। अब फिर गहरी सांस लें, छोड़ें। 5 बार गहरी सांस लें, छोड़ें, सांस लें, छोड़ें, सांस लें, छोड़ें, सांस लें, छोड़ें। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। मैं धीरे धीरे आपको अपने ही मस्तिष्क में जाने के लिए बोलूंगा। अब आप ऐसा महसूस करें कि परम पिता परमात्मा ने एक ट्रांसपेरेंट, बहुत सुंदर लिफ्ट आपके लिए भेजी है। लिफ्ट का दरवाजा खोलकर अपने उसमें प्रवेश करें। लिफ्ट के अंदर -7 का बटन दबाएं। शीघ्रता से व सुरक्षित आप -7 फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और आप एक रेड कलर का फ्लोर देखते हैं। फ्लोर आपका बेस चक्र है, मूलाधार चक्र को दर्शाता है। ये हिप्स के पास, एंड ऑफ द स्पाइन
पर स्थिर रहता है। ये सेफ्टी, सिक्योरिटी और सारी परेशानियों से आपको मुक्त करा रहा है। लाल रंग को अपने अंदर बसाते हुए अपनी इनसिक्योरिटीज और सभी परेशानियों को यह लाल रंग की एनर्जी दूर करेगी। अपनी लिफ्ट जो आपके पास है उसमें बैठकर -6 का बटन दबाएं। सुरक्षित व शीघ्र 6 पर पहुंचकर मुस्कुराते हुए फ्लोर को देखें। ये फ्लोर ऑरेंज रंग का है। ऑरेंज रंग को अपने पाकिस्तान चक्र जो कि एमलाइकस से 4 उंगली नीचे है, जहां प्यूबिक बोन है, वहां महसूस करें, वो वाइब्रेट करने लग जाएगा। ये चक्र आपको जूस ऑफ लाइफ देगा, प्लेजर देगा। ऑरेंज रंग का धन्यवाद करते हुए अपनी सुंदर लिफ्ट में बैठकर अब -5 का बटन दबाएं। आप अब चमकते हुए येलो कलर के फ्लोर के ऊपर पहुंच गए। यह आपकी सक्सेस का चक्र है। अपनी सक्सेस को अपने अंदर फैलने दें। धन्यवाद करते हुए अपनी लिफ्ट में फिर बैठे। ये आपको और ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अब -4 का बटन दबाएं। अब हरे रंग का हरा भरा फ्लो, खुशहाली का भरा फ्लो, ये हमारा अनाथ चक्र है। सेंटर ऑफ चेस्ट में यह स्थित होता है। हरे रंग का चेस्ट और हार्ट में फैला दें। हरे रंग को चेस्ट और हार्ट में फैला दें। यह आपके सारे इमोशन को बैलेंस करेगा। अब आप लोग अपनी प्रेम करेंगे, डिवाइन लव को महसूस करते हुए अब अपनी लिफ्ट में जाकर -3 का बटन दबाएं। इस फ्लोर पर हवाओं को अपने वोकल कॉर्ड पर महसूस करें। यह आपका विशुद्धि चक्र है। यह आपकी वाणी को शुद्ध व इफेक्टिव बनाए। इस रंग को फैलने दें। यह आपका पावरफुल कम्युनिकेशन बनाएगा। इस रंग को फैलते हुए अपनी लिफ्ट में फिर चलते हैं तो -2 का बटन दबाते हैं। इस पर फ्लोर पर वॉयलेट रंग है। वॉयलेट कलर को महसूस करें, अपनी आंखों में बसाएं। वह फोरहेड जहां तिलक लगाते हैं, ये आपका आज्ञा चक्र है। इसको चार्ज करें। इससे आपकी दूरदृष्टि व सोचने समझने की शक्ति, इंट्यूजन पावर बढ़ेगी। धन्यवाद करते हुए ऊंचाई के शिखर पर ले जाने वाली लिफ्ट में प्रवेश करें और -1 का बटन दबाएं। अब अपने शिखर पर आप पहुंच गए। ये चक्र ब्राउन चक्र कहलाता है। यहाँ कई लोगों को पर्पल, कई लोगों को व्हाइट, कई लोगों को सितारे या अपने डेटी के शुभ दर्शन होते हैं। ये चक्र हमारे सिर का ताज है। ये हमें पूरे ब्रह्मांड से कनेक्टेड रखता है। अपने सातों चक्रों को हीलिंग कर रोज अपने शिखर पर पहुंचकर अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण करें। ब्रह्मांड आपका ध्यान रखेगा। उस पर भरोसा करें। रोज आप अपने सातों चक्रों की हीलिंग करें। इस वक्त अपने आप को ब्रह्मांड से कनेक्टेड महसूस करते हुए धन्यवाद करें और एक बार फिर गहरी सांसें लेते हुए इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, और उस गैप जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बीच में गैप आ रहा है,
उसको पहचानने की कोशिश करें। वही गैप एसेंस ऑफ डिवाइन एनर्जी है, वो नहीं होगा तो हम नहीं उसको पहचाने, उसी पे कंसंट्रेट करें, सातों चक्र की हीलिंग रोज करें, तो आप लोग सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, मेंटली भी, फिजिकली भी, एनवायरमेंटली भी, सोशली भी। धन्यवाद। Open your eyes. ये एक मेडिटेशन है, इससे देखा होगा माइंड में रिलैक्स आई। बीच में मेरे को तो नींद ही आ गई थी, तो नींद भी अगर आ जाती है तो ये भी योग निद्रा कहलाती है। कोई बुराई नहीं है, उस टाइम पर साइलेंस में होते हैं, माइंड पीसफुल हो जाता है। तो एक लाइन में फिर रिवाइज करते हैं कि हमारी जो बॉडी है ये त्रिगुणी है, मॉलिकुलर, ये फिजिकल बॉडी है। और अभी आपने जो पूरा ये मेडिटेशन किया, ये अपनी मॉलिकुलर बॉडी पे किया है। मॉलिकुलर बॉडी और फिजिकल बॉडी के अलावा भी एक ऐसी बॉडी है जिसको हम प्योर कॉन्शियसनेस कहते हैं, जो स्पेस है, जो सांसों के रूप में हमारे अंदर चल रही है, उसी को हम लोग पवन पुत्र करते हैं। एंड में मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग थर्ड स्टेज में तो आ ही गए हैं, अब रेगुलर प्रैक्टिस करें। क्योंकि क्या है, आत्माएं, आप जिसको आप कई किसी ने लिखा था आत्मा है, बेसिकली क्या है, इस जीवन में आत्माएं तो आ ही रही हैं कि स्पर्म ओवम का कनेक्शन हो रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, 3 महीने बाद उसमें जान आ जाती है। तो बेसिकली आत्माएं तो आ रही हैं, पर जो सबसे पहले आत्मा मतलब हवा ही आ रही है, स्पेस ही आ रहा है सबसे पहले। इस ब्रह्मांड में भी सबसे पहले स्पेस आया था, उसके बाद एयर आई थी। तो के नटशेल कहने का मतलब ये है कि नई जो आत्माएं हैं, उनमें उनको तो हर चीज नई लगती है। सेक्स भी नया लगता है, ड्रग्स भी नई लगती हैं, अल्कोहल भी नया लगता है, दुनिया भी अच्छी लगती है, तो अपनी जिंदगी खराब करके चले जाते हैं। हम लोग पुरानी आत्माएं हैं जो कई सालों से, वर्षों से, हजारों सालों से जन्म लेते हुए आ रहे हैं। जब इस नतीजे पे पहुंचे हैं और इतना ज्ञान सुनने के लिए आप हमारे पास बैठे हैं, तो मित्रों, इस जन्म का फायदा उठाएं, अपने इस जीवन को इस सफल बना के भक्त से भगवान बनने की कोशिश करें। धन्यवाद। वेबसाइट है, और लोगों के साथ भी शेयर करें। ये सर्विस है, वेबसाइट पे जाएं, छोटे छोटे हमारे कुछ कोर्सेज हैं, उनकी हेल्प से मदद लीजिए और आगे चलिए। आप लोगों का जो सुझाव हो मुझे बताएं। धन्यवाद। आपको कैसा लगा वो भी लिख के भेजिए। सानी सर, एक हाँ चीज था। हाँ। सेशन तो एक्सीलेंट है और आपका बोलने का तरीका भी बहुत इम्प्रेसिव है सर, बहुत अच्छा लगता है मेरे को तो। थैंक यू, थैंक यू। सर एक रिक्वेस्ट है कि ये ना, मैंने एक 500 रुपीज का एक वो पेमेंट किया था, सेशन मैंने कुछ परचेज किए थे और मैं हाँ, उसको एक्सेस नहीं कर पाया था। अच्छा, मैं तो दोबारा भेज देता अखिलेंद्र हूँ। सर से। हाँ जी। आप अपना नंबर भेजो, दोबारा भेज दूंगा मैं। जी जी हाँ, वो अखिलेंद्र सर को मैंने मैसेज कर दिया है, मैं आपको भी मैसेज कर देता हूँ। हाँ, तो कर वो दो एक बार यार। लिंक वापस भिजवा दीजिएगा सर, तो मैं भेज यार, उसको अभी वापस भेज एक्सेस दे। कर दूंगा। अभी भेज देता हूँ मैं अभी भेज जी देता जी हूँ। फिर भी कोई जी प्रॉब्लम हो डायरेक्ट फोन कर लीजिए भैया। जी को, जी सर जी। कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी भेजता हूँ भैया। हाँ, बाकी मुझे आपका सेशन सुनना बहुत अच्छा लगता है सर। नहीं, थैंक यू सो मच, ये मेरे को भी मोटिवेट करता है, मुझे भी हाँ, मैं इंस्पायर जल्दी आपके करता है। साथ कनेक्ट कर पाता हूँ। नहीं नहीं, बहुत जरूरी है। बेसिकली आप हाँ भी क्या है कि ब्लेस सोल्स हैं जो इस चीज को समझ पा रही हैं। बेसिकली देखो, ये सब समझदारी के लेवल पे हैं। बाकी जो दुनियादारी के काम हैं, ब्रेन बॉडी कॉम्प्लेक्स, जो इसके लिए इंस्ट्रूमेंट मिला है, जैसे क्या है, जैसे मैं ENT सर्जन हूँ, तो मैं ईयर सर्जरी करता हूँ, इंस्ट्रूमेंट वही है, माइक्रोस्कोप वही है। तो कुछ ऐसे मेरे जूनियर्स हैं जो मुझसे 10-10 साल छोटे हैं, वो मुझसे भी अच्छा ऑपरेशन करते हैं। समझ रहे हैं आप? हाँ तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि हमारी भी बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है। ये आईज भी एक इंस्ट्रूमेंट है। ब्रह्मांड में तो वेव्स चल रही हैं, जब इंस्ट्रूमेंट से टकराती हैं, तो आप मान के चलिए कि वो हमको फिर इमेज बन के नजर आती है। तो हाँ ऐसे ही क्या है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप, हो सकता है कि मेरा सुन के ही मुझसे बेटर परफॉर्म करें। यही मेरा आपसे निवेदन है। कई बार क्या होता है कि कौन किस, आत्मा कहाँ किस लेवल तक है ये पता नहीं चलता, पर आप लोग सीकर्स तो हैं ही, एटलीस्ट थर्ड स्टेज तक तो हैं ही, जब भी अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं।
तो मैं अभी भिजवा देता हूँ, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो दीपक जी बताइएगा। हाँ हाँ, वैसे अखिलेश ने मुझे पहले भेज दिया था, हाँ हाँ। लेकिन मैं उसको एक्सेस नहीं कर पाया था, तो वापस वो मेरे से डिलीट हो गया था। नहीं मैं नहीं, लिख लूंगा तो सर। मैं भेज देता हूँ, भेज दे अगले। ठीक जी है, जी लिंक भी भेज रहे हैं यार, आपकी जो हो तो टेस्टिमोनियल भेजिए। ठीक है जी बॉस, जी सर। थैंक यू, हैप्पी संडे।